आर्सलान, किंग ऑफ बिरयानी और हमजा कलेक्शन। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कल खबर आसनसोल की जानिब से बनपुर और आसनसोल के वो समाजी तंजीम जिन्होंने कोरोना काल में इंसानियत का सबूत देते हुए लोगों की मदद की थी, उन्हें कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इस्तकबालिया दिया गया, जहां सभी तंजीमों के अरकान के अलावा सीनियर एडवोकेट शेखर कुंदू, साबिक काउंसलर बबीता दास, प्रवीर धर, आशीष पटेल, जयदीप मुखर्जी, आनंद उपाध्याय खास तौर से मौजूद थे। पेश है चंद झलकियां। जिसमें यह तय पाया गया था कि 9 अगस्त से 14 अगस्त तक ट्रेड लाइसेंस कैंप का इनेकाद किया जाएगा। आज पहले दिन आश्रम मोड़ में वाक़ पार्वती इंटरनेशनल होटल में साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की मदद से और आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में ट्रेड लाइसेंस कैंप लगाए गए। इस सिलसिले में विनोद गुप्ता और शंभू झा ने जानकारी देते हुए कहा, आसनसोल कॉरपोरेशन के सौजन्य से और हम लोगों को साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम लोगों ने
9 तारीख से 14 तारीख तक शिविर लगाने का उद्योग लिया है। इसमें ट्रेडर्स, छोटे छोटे ट्रेडर्स आ रहे हैं और सेम डे लाइसेंस का सुपुर्द किया जा रहा है। लोग खूब उत्साहित होकर के आ रहे हैं और ट्रेड लाइसेंस बना करके चले जा रहे हैं। अभी तक कम से कम 10-15 लोग आए हैं और ट्रेड लाइसेंस बना के ले गए हैं। ये हम लोगों को लिए खूब खुशी की बात है कि नितिन सिंघानिया जी ने ये उद्योग लिया और ये हम लोगों के मेयर साहब जो अभी चेयरपर्सन है, उन्होंने उद्योग लेकर के हम लोगों को ये शिविर लगाने का आश्वासन दिया था, जो आगे भी लगी थी, तो उसमें भी बहुत से लोग लाभान्वित हुए थे। इस बार भी लोग लगेंगे। 6 दिन का शिविर लग रही है और सेम डे में डिलीवरी हो रही है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, ये जितने ट्रेडर्स हैं छोटे छोटे, वो आकर के इसका सदुपयोग करें और इसका लाभ उठाएं। आसनसोल में चैम्बर ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर का मेंबर हूँ। मैं विनोद कुमार गुप्ता हूँ। आज के आसानसोल চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে 9 তারিখ থেকে 14 তারিখ অবধি ট্রেড লাইসেন্সের ক্যাম্প করা হয়েছে, যাতে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মিস্টার নিতিন সিংঘানিয়া আমাদের খুবই সহযোগ করেছেন। তাই বলে আমরা এখানে আজকে ক্যাম্প লাগাতে পেরেছি। আর আশা করছি কি বিগত যে ক্যাম্প হয়েছিল ওতে যে রেভিনিউ এত ভালো কালেকশন হয়েছিল, এবারও আমরা আশা করব কি অমনি রেভিনিউ কালেকশন করে আমরা কর্পোরেশনকে দিতে পারি। এতে কর্পোরেশনেরও লাভ আছে আর আমাদের ব্যবসায়ীরাও খুব এতে খুশি আছেন কি এত সহজভাবে এখানে আমাদের ট্রেড লাইসেন্স ক্যাম্পে ট্রেড লাইসেন্স তৈরি হচ্ছে। আমি শম্ভুনাথ ঝা, সম্পাদক আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस कारकुनान पर हुए हमले के खिलाफ बनपुर, आसनसोल और रानीगंज में जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं। आज आसनसोल नॉर्थ में उत्पल सिन्हा की क़यादत में एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। कल बनपुर टीएमवाईसी की जानिब से और रानीगंज टीएमसीपी की जानिब से एहतजाज किया गया था। কিছুদিন আগে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যেভাবে ত্রিপুরার বিজেপি গুন্ডারাজ এবং মাফিয়ারাজ চলছে, ত্রিপুরার গুন্ডা বাহিনী এসে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যেভাবে লাঠি দিয়ে বাঁশ দিয়ে আক্রমণ করা হলো, তার ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং সাথে কালকে আমাদের যুব নেতা এবং আমাদের দলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য এবং আমাদের জয়া দত্ত এবং সুদীপ রাহার উপর যেভাবে ইট পাথর দিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে, এটা সত্যি একটা দুঃখিত। আজকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, ত্রিপুরার পুলিশ কিন্তু নির্লজ্জভাবে বসে আছে, তারা বিজেপির সমর্থন করছে। কই বাংলাতে তো আমরা এরকম ঘটনা কোনোদিনও দেখিনি। আজকে বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে, ত্রিপুরার মানুষও বুঝতে পারছে যে আমরা কাকে ভোট দিয়ে দাঁড় করিয়েছি। বিপ্লব বাবু, আপনি শুনে রাখুন, এভাবে তৃণমূলকে ভয় দেখিয়ে গুন্ডা দিয়ে কিন্তু তৃণমূলকে আটকানো যায়নি। বামফ্রন্ট তো পারেনি, কিন্তু 34 বছরের বামফ্রন্টকে আমরা মমতা দিদির নেতৃত্বে কিন্তু হাঁটিয়ে দিয়েছিলাম বাংলা থেকে। আপনাদেরকেও হাঁটাবো, আমাদের প্রতিজ্ঞা চলছে, আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব। আগামী দিন যতদিন থাকবে আমাদের নেতা নেত্রীর উপর যতদিন আক্রমণ করা হবে, আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব। ধন্যবাদ। আপনারা জানেন গত দুদিন আগে যে ত্রিপুরাতে আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছেলেদের উপর হামলা করা হলো, আমাদের সুদীপ লাহা যে আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একজন কর্মী, আমাদের প্রাক্তন স্টেট প্রেসিডেন্ট জয়া দত্ত এবং দেবাংশু ভট্টাচার্যের উপর বিজেপির যে গুন্ডারা, যে বহিরাগত গুন্ডারা ইউপি থেকে এসে ত্রিপুরাতে যে হামলা করেছে, তার মাথা ফাটিয়েছে, জয়া দত্তর রক্ত বার করেছে, তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা টিডিপি কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রোডে নেমেছি, তার প্রতিবাদ জানাই। আমরা সকাল থেকে প্রতিবাদে আছি, এই আমাদের লাস্ট কর্মসূচি আছে, আর কিছুক্ষণ চলবে, তারপর আমরা এই বিক্ষোভকে শেষ করে এবং আগামী দিন যদি হামলা করা হয় আরও এর থেকে বড় আমরা বিক্ষোভে যাব। রেহান সাকিব, প্রেসিডেন্ট রানীগঞ্জ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।
कलेक्शन। शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। इतवार के रोज मिल्लत एकेडमी जूनियर हाई स्कूल में नजरुल सोशल सेंटर और आसनसोल टाउन नेताजी के मुश्तरका टाउन से शजरकारी और बेकरी ऑफ कॉन्फेक्शनरी कोर्स सर्टिफिकेट का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह तलत शमीद ने केक काट कर किया। तंजीम के अरकान ने कहा कि इस कोर्स को करवाने का मकसद ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। प्रोग्राम की सदारत इंजीनियर खुर्शीद गनी ने की और नकाबत की जिम्मेदारी इम्तियाज अहमद अंसारी ने अंजाम दी। इस मौके पर मीर हाशिम, मुफ्ती जुबैर अहमद कासमी, शकील अहमद, मोहम्मद सुल्तान, मौलाना एहसानुल मज़ाहिरी और हाफिज जाहिद मुर्तजा खास तौर से मौजूद थे। सभी मेहमानों ने तंजीम के इस कदम के लिए तंजीम को मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही तंजीम की जानिब से खालिद परवेज और इजहार आलम के अलावा तमाम अरकान मौजूद थे। प्लांटेशन करना ज्यादा आसान है। इस वक्त वो पौधे जिन्हें प्लांट किया जा रहा है, जिन्हें मिट्टी के अंदर भेज दिया जा रहा है, यकीनन थोड़ी सी अगर देखभाल कर दी जाए तो फिर उस प्लांट को एक बड़ा दरख्त बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और जब वो दरख्त बनेगा तो आपको पता है कि दरख्त से अच्छा साथी, प्लांट से अच्छा साथी कोई दूसरा नहीं होता। बाकी जितने भी दोस्त हैं वो हमसे बदले में कुछ ना कुछ तो जरूर चाहते हैं, लेकिन दरख्त और पौधे ही ऐसे दोस्त हैं, हमारे माहौल के ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें फायदेयाब करते हैं, हमें फायदा पहुंचाते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। बल्कि सच्चाई है, जो साइंस के स्टूडेंट ने पता है उन्हें कि वो बदले में हमसे वो चीजें ले लेते हैं जो हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए जहरीली है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ता है अपने सांसों के जरिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिजाओं में जाकर यकीनन जहरीले असरात पैदा करते हैं। इसे कम होना जरूरी है। इन तमाम जहर को पौधे जज्ब कर लेते हैं और बदले में সরকার উভয় সরকারের কাছেই আমাদের আবেদন থাকবে। আমাদের যেমন হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম করতে পারছে, সেই রকম ভাবে আদিবাসীদেরও নিজস্ব যেন সংস্কৃতি কোড বা ধর্ম কোড থাকে। আমাদের আদিবাসী পড়া লিখুক না, আদিবাসী সাঁওতাল লিখুক না, আদিবাসী মুখে প্রকৃতির চিত্রটা উঠে আসবে। তাহলে প্রকৃতির চিত্রটা যদি তুলে ধরতে হয় তার প্রয়োজন আছে। সেই জন্য আমাদের আদিবাসীদেরও আমি স্মরণ করতে চাই। ইতিহাসে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বীর সেনানীদের কথা যেরকম ভাবে ইতিহাসে লেখা দরকার ছিল সেরকম ভাবে আমাদের পঠন পাঠক আছে, কানু আছেন, এনারা আদিবাসী হিত, আদিবাসী বীর, ইনাদের ইতিহাস আমাদের জানতে হবে, আমাদেরও রাখতে হবে, হাই স্কুলেও রাখতে হবে। কেন থাকবে জেলেমানঙ্গ আদিবাসী বাহিনী করা? তাহলে এটা আবহাওয়া নিয়ে দুর্ভাগ্য। আর সরকারি ভাবে যেরকম ভাবে আবহাওয়া পালন করা দরকার না সেই রকম কারণে না আবহাওয়া ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যে মেনা ভারতবর্ষের সংবিধান আশিকে এমন কামিয়ে হইয়া কিন্তু এনে হিসাবে আবু ল্যান্ড হইয়া না। প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে তার সাথে সাথে আবু আদিবাসীকে কামিয়ে হইয়া আবুয়া এমন হড়কু কাকু কামি নামে সাধারণ হড়ক এম হইয়া এনে সঙ্গে সঙ্গে আবু আদিবাসী কো এম হইয়া কিন্তু আবু এমন কাবুলের নামে এটা আবু অধিকার সম্বন্ধে সারি দরকার না। আবু প্রত্যেকটা হড়কে আবু সংবিধান নিয়ে কিরিং হইয়া না হানা বই পড়া কাতে তো আবু দুসুমরা নিয়ম কানুন কাবু বুঝি নামে আবু যদি প্রত্যেকটা ভারতবাসী প্রত্যেকটা আদিবাসী মিয়া কাতে সংবিধান কিরিং আবু এবং এনে সংবিধান রে হুডাং হুডাং পড়া কাতে
माने को बुझने हमरा चेष्टा एबु ताहाय ओंदे चिने आलो मेना संविधान रे एबं आबु चिने अवस्था रे मिनि बुआ ने एजन्य आले पे एवं संविधान रे आर्टिकल आबु कागज संगे आबु संपर्क। जी, आज हमारे यहाँ रविंद्र भवन में विश्व आदिवासी दिवस पालन किया जा रहा है। ये आपका इंग्लिश में पूरा दुनिया में द इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय मतलब में, भारतीय अर्थ में इसको विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये पिछले हम 2005 साल से यहाँ ये रविंद्र भवन में या संप्रीति भवन में हम लोग मनाते हैं। और ये आदिवासी दिवस हम नहीं बनाए हैं, ये घोषणा की है यूएनओ ने, राष्ट्र संघ ने, राष्ट्रपुंज ने किए हैं। और इसलिए किए हैं कि पूरा दुनिया भर में जो आदिवासी है, जो इंडिजिनस है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है और उसके जो भाषा, संस्कृति, उसके जो रहन सहन, उसके जो परिवेश नष्ट हो रहा है। ये सब रक्षा के हेतु ये राष्ट्र संघ पिछले 1993 में आदिवासी वर्ष घोषणा की थी। उसके बाद 1994 में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आदिवासी दिवस रूप से हर साल मनाया जाएगा, ये घोषणा की है। इसके सिलसिले में उन्होंने रेजोल्यूशन ली है, राष्ट्र संघ ने रेजोल्यूशन ली है कि किस तरह आदिवासी को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये जब दुनिया सृष्टि हुआ था, ये धरती बनी थी, उसी समय इसका जन्म हुआ था। इन लोगों को बचाना जरूरी है। तो आज हमारे देश भारतवर्ष में उसका प्रभाव कितना पड़ा है ये हमें नजर आ रहा है। हमें की बड़ी दुखद की बात यह है, राष्ट्र संघ में जाके हमारे भारत देश के प्रतिनिधि ने वहाँ दावा किया है कि हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं है। ये बड़े शर्मनाक ये शब्द है। और हम चाहते हैं कि भारत का सरकार अपना यूएनओ में जाके राष्ट्र संघ का सब अपने सदस्य हैं, वहाँ जाके बोले जो हमारा रहन सहन, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा भाषा जो सदियों से इस भारतवर्ष में है, जो आदिम गोष्ठी बोला जाता है, जो पहली युग से यहाँ बस रहे हैं, तो हमारे देश में आदिवासी है, ये इसको मानना जरूरी है। हम दावे करेंगे कि हमारे भारत सरकार यूएनओ में जाके बोले कि भारतवर्ष में आदिवासी है। यहाँ अगर नहीं, ये जब तक उन्होंने यहाँ स्वीकार नहीं करेगा तो हमारे जो इंडिजिनस का हिसाब से, आदिवासी के हिसाब से जो। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास के हमारे ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसपास। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।